آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 2 اور اب خبروں کی تفصیلات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ منفی اثرات کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ حکومت ٹڈی دل کنٹرول کرنے کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر چکی۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ہر وسیلہ فراہم کرے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد ٹڈی دل سینٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے صورتحال پر بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ معیشت پر منفی اثرات کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ حکومت ٹڈی دل کنٹرول کرنے کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والی بڑی مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بنائے جانے والے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر پنجاب کے کئی شہروں میں بڑی مارکیٹس بند کر دی جائیں گی۔ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والی مارکیٹوں کے خلاف ایکشن ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹائمنگ جو ہے دکانوں کی وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہے۔ کچھ دکاندار آدھا شٹر کھول کے یا اپنی دکان کو اس پھٹے پر شفٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں۔ 7 بجے کا مطلب ہے بازار میں کوئی بندہ کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا جس دکان کی کیٹیگری اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ اس نے اس وقت بند ہونا ہے، وہ بند ہوگی۔ انشاءاللہ وزٹ کریں گے سرپرائز، ایس او پیز کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے اور سختی کے ساتھ کروائیں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور کے مکین ہو جائیں تیار، بغیر ماسک ڈرائیونگ پر چالان ہوگا۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر سید حماد عابد کے مطابق دوران ڈرائیونگ ماسک نہ پہننے والوں کو چالان ہوں گے۔ کارروائی کے لیے 8 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ مشترکہ ٹیمیں مختلف مقامات پر کورونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گی۔ وفاقی حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے بنائے جانے والے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے ہی کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ انڈسٹریل ایریاز، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ کو ایس او پیز پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے گا۔ کے بغیر داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سندھ میں ماسک سینیٹائزر کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ عوام کے سرکاری دفاتر میں داخلے پر لگا دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری محکموں کو نو ماسک نو انٹری کے بینرز اویزاں کرنے کی بھی ہدایات کر دی گئیں۔ پنجاب اور سندھ کے سرکاری دفاتر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا بے قابو ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 82 اموات نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 1770 ہو گئی۔ مزید 4688 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 85,264 ہو گئی۔ 30,128 مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا وائرس نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 82 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 1770 ہو گئی۔ سندھ میں 555، پنجاب میں 607، خیبر پختونخوا میں 500، بلوچستان میں 51، گلگت بلتستان میں 12، آزاد کشمیر میں 7 اور اسلام آباد میں 38 مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,90,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 8 لاکھ تک جا پہنچی۔ 32 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,90,000 افراد کو نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 66 لاکھ تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 19 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس منتقل ہو چکا۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,09,200 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں 39,728، اٹلی میں 33,601، اسپین میں 27,128، فرانس میں 29,021، جرمنی میں 8,700 افراد اب تک کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے سینئر رکن فیصل سبزواری خانہ سمیت کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ فیصل سبزواری نے اپنی ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ ان کے والدین، زوجہ اور 2 بیٹیاں کورونا میں مبتلا ہوئی ہیں۔ آج ان کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اہل خانہ میں صرف منجلی بیٹی اور ان کی دوسری اہلیہ مدیحہ کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पेट्रोलियम और सेहत के शोबों में इस्लाहात का अमल मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्लाहात के जरिए सहूलियात को बेहतर बनाकर निज़ाम में मौजूद खामियां दूर करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवनीन खुसूसी नदीम बाबर, उस्मान डार और इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द ने अलग अलग मुलाकातें की। मुआवनीन खुसूसी नदीम बाबर ने वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम सेक्टर में जारी इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त पर ब्रीफ भी किया है। और अब खबर यह है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा से चीन के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से चीन के सफीर ने मुलाकात की। चीन के सफीर ने सीपैक की पेशरफ्त और रफ्तार पर मुकम्मल एतमाद का अदा किया है। सिंध असम्बली के हंगामाखेज इजलास में हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने एक दूसरे पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशोह ने अंग्रेजी में पॉलिसी बयान दिया, जिस पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की नुसरत सहर अब्बासी ने एहतजाज किया और कहा कि तकरीर सिंधी या उर्दू में की जाए। सिंध असम्बली के इजलास में वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा का कहना था कि विफाक चाहता है कि लोग कोरोना लाखों की तादाद में मरे। वजीर आजम कहते हैं कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ये ऐसे लड़ेंगे कोरोना से। 13 मई के बाद जिस तरह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की गई, अब इसका नतीजा बहुत बुरा आ रहा है। अब सूरत हाल हमारे हाथ से निकल रही है। हकीकत यह है कि हर घर से मरीज निकल रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना है कि वजारत सेहत अवाम के साथ खेल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के बाद डॉक्टर्स के जेर इल्तवात से मुतल्लिक ऑर्डर जारी न करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वजारत सेहत में सेक्शन ऑफिसर सबसे ऊपर है, दूसरी जानिब वही तमाम मामला चलाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ऑर्डर जारी न करने पर वजारत सेहत पर बरहमी का इजहार भी किया। दूसरी जानिब खबर अब यह है कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि स्कूल एसोसिएशंस के कहने पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अगर स्कूल खोले गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने एक बयान में कहा कि किसी सूरत बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं करेंगे। जब तक हालात बेहतर नहीं होते स्कूल नहीं खोलेंगे। वालिदैन को फीस देने का इसलिए कहा कि उसातिजा को तनख्वाहें अदा की जा सकें। और अब खबर यह है कि डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है मरीजों की तादाद बढ़ गई है। देखते हैं लाहौर से अली तारिक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना का शिकंजा मजीद सख्त हो गया। मरीजों की तादाद चीन से भी तजावुज करके 86,930 तक पहुंच गई, जबकि 1700 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन खोलकर गलती की है। जब से लॉकडाउन खुला है मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स का कहना था कि शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। 6 लाख कोरोना वायरस के मरीज लाहौर में मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। बाजारों और मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, जिससे तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब बड़ी तादाद में डॉक्टर्स में भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मुतअद्दिद एहलकार कोरोना में मुब्तला होकर करंटीना। लाहौर में 5, पंजाब में 11 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। देखते हैं लाहौर की ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक बढ़ गया है। लाहौर में 5 और पंजाब में 11 पुलिस एहलकार कोरोना की भीड़ चढ़कर शहादत नोश कर चुके हैं। DIG सुहेल सुखेरा, SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद समेत 498 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ अजला में कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि SSP एडमिन लाहौर मलिक लियाकत समेत 74 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में DSP सिविल लाइन आमिर डोगर और नवाकोट के सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन कोरोना की वजह से शहीद हुए।
डीएसपी आमिर डोगर के वालिद और वालदा पहले ही कोरोना की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक भाई भी वेंटिलेटर पर मौजूद है। सीसीपी लाहौर जुल्फकार हमीद का कहना है कि उनकी फोर्स फ्रंट लाइन पर आवाम के लिए मौजूद है। शहरियों को कोरोना वायरस को सीरियस लेना चाहिए और एक दूसरे की जान बचाने के लिए सेफ्टी एसओपीज पर अमल किया जाए। पंजाब पुलिस का हर नौजवान ऑपरेशनल ड्यूटी से पहले इस बात का हल्फ देता है कि वो अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश कर देगा। कोरोना वायरस के दौरान पंजाब पुलिस अपने इस हल्फ की पासदारी करते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे लाहौर। शिराज निसार की रिपोर्ट आपने जानी। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स के ठेकों के केस में नैब रावलपिंडी ने वजीर आला सिंध का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुराद अली शाह ने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवाया। नैब पेशी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को कहा कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है, वबा के हालात में भी कोरोना पर काम कर रहे हैं, इस हवाले से काम कर रहे हैं। वजीर आजम को पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोच कर फैसले करने चाहिए। ये वक्त हर किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं, कोरोना कोई वबा को संजीदा लिया जाए। साल 2014-15 में हमने सिंध में जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और टाउन कमिटीज़, उसमें एक स्कीम अप्रूव की थी सोलर लाइट्स लगाने की। उसकी इंक्वायरी थी और मैं उस वक्त सूबे का वजीर ख़जाना था, तो मुझे उस स्कीम की अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जो वजाहत होनी चाहिए थी, उस सिलसिले में बुलाया था। जो उनके सवालात थे उनके जवाब दिए। उनके सवालात बेसिकली उनको बताया कि सवाल प्राइमरीली ये था कि उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाई और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया। और उनको बताया कि आइन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो और साल के दौरान, और इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि इमरजेंसी हो तो आपने करनी है, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाज़त दी जा सकती है। तो उसको आइन के आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए वो इजाज़त दी गई। और आगे उसमें एक बाइंडिंग भी है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत जो भी ऐसी आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर करे उसको असेंबली से अप्रूव कराए। हमने उसको असेंबली से भी अप्रूव कराया था। तो सारे जो कानूनी और आईनी नुकात थे वो हमने पूरे किए। मेरा रोल तक था और मैंने इस हद तक नैब के सवालात के जवाब दिए और कोशिश की है कि जो आईनी हकीकत है उनसे उनको आगाह। और अब खबर यह है कि मामून खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर अंदर से एक, टीटीज और जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर भिजवाए जाने वाले पैसे और इनसे खरीदी जाने वाली जायदादों से वो इनकार नहीं कर सकते। शहबाज गिल ने वजीर आला सिंध के नैब पेशी के हवाले से बयान पर कहा कि दोनों अपोजिशन जमातों के दरमियान नजरियात का ढोंग, नूरा कुश्ती और सियासी मुखालफत सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर यह है कि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ का बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नैब पेशी से फरार लेकिन हाईकोर्ट में रिलीफ के लिए पेशी के पीछे मुनाफकत छुपी है। शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दबनी बचाने के चक्करों में हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान करते हुए कहा कि डेटा और वॉइस बॉक्स मिल चुके, अभी तक किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई, जल्द अज जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि मैं सबसे अपील करता हूं इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले किसी का दिल ना दुखाया जाए। फर्स्ट नाइट ही हमने एक इसका इंक्वायरी बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। 4 रुकनी इंक्वायरी बोर्ड है, वो वाक़या पे भी पहुंचा, काफ़ी दिनों से वहीं हैं। दोनों बॉक्सेस, वॉइस बॉक्स और डेटा बॉक्स, दोनों रिकवर हो चुके हैं। और जो स्पेशल टीम फ्रेंच टीम फ्रांस से आई, उन्होंने भी उन्हें असिस्ट किया। इब्तदाई जो भी तहकीकात उन्होंने करनी थी वो भी की और दोनों बॉक्सेस लेके अब वो टीम वापस चली गई है
کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ جارحیت کا شکار بچوں کے عالمی دن کے موقع پر دنیا مقبوضہ کشمیر کے بچوں پر جاری بدترین ظلم و ستم کا نوٹس لی۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم میں بچوں کی قید اور ان کی شہادتیں عالمی ضمیر پر سوال کا نشان ہیں۔ پیلٹ گنز کے بے رحم استعمال نے بچوں کی بصارت چھین لی ہے۔ وادی جنت نظیر میں غیر انسانی اور تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن اب بھی جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم انتہائی حد کو پہنچ چکے، عالمی برادری کو بھارتی قابض افواج کی بربریت کا نوٹس لینا ہوگا۔ یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ نے بھی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا معاملہ اٹھایا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے گلگت بلتستان میں بدھ تہذیب سے متعلق بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے الزامات تاریخی حوالوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے بالکل برعکس ہیں۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے 40 ارب روپے کی کثیر لاگت سے گرین پنجاب منصوبے پر 2 سال کی تاخیر کے بعد کام کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبہ ورلڈ بینک کے تعاون سے 5 برسوں کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں آبادی کے فرق کے تناسب سے دیگر مسائل کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بھی دوسرے صوبوں کی نسبت قدرے سنگین ہے۔ بہتری کے لیے 2018 میں ایک منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی اجلاس 3 بجے نجی ہال میں ہوگا۔ پہلی بار پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسمبلی کی عمارت میں نہیں ہوگا۔ ہوٹل میں اجلاس منعقد ہونے سے اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ لاہور سے شعیب ہاشمی کی رپورٹ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی رولز 235 کے تحت نجی ہوٹل میں اجلاس منعقد کرا رہے ہیں۔ کووڈ 19 کے ایس او پیز کے مطابق اسمبلی ارکان کا سٹنگ پلان تیار کیا گیا ہے۔ اجلاس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے مقامی ہوٹل میں قائم کردہ اسمبلی ہال کا دورہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہوٹل میں قائم اسمبلی ہال میں ارکان کی نشستوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کی الگ نشستیں تیار کی گئی ہیں۔ اسمبلی ہال میں آفیشل گیلری اور سپیکر باکس بھی بنایا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے تمام جماعتوں کو اپنے ارکان اسمبلی کے کورونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے نجی ہوٹل میں منعقد ہونے والے اجلاس سے لاکھوں روپے کا اضافی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جب انتہائی کم ہوٹل اخراجات کی تفصیل سامنے آئے گی تو تنقید والے منہ چھپاتے پھریں گے۔ جب ہم نے بتایا نا کہ خرچے کے حوالے سے تو خود یہ دیکھنا اب یہ خود ہی منہ چھپاتے پھریں گے جو باتیں کرتے ہیں۔ اخراجات کی بات کرنے والے تو شاید چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو تالا ہی لگ جائے۔ 3 جگہ سے ریٹس لینے کے بعد کم ترین ریٹ والے ہوٹل کا انتخاب کیا گیا۔ جو باتیں کرنے والے ہیں نا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس بڑی کوئی اسکیم ہے کہ ہم بغیر خرچے کے ایک پیسہ نہیں لگے گا تو ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو اگر ویسے اسمبلیوں کو بند کر دے تو خرچہ ہی کوئی نہیں۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ نیا اسمبلی ہال سابق حکمرانوں نے مکمل کیا ہوتا تو آج اجلاسوں کے لیے ہوٹلز میں جگہ نہ ڈھونڈنا پڑتی۔ سابق حکمرانوں نے 10 سال اس پر کام ہونے نہیں دیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ ناکے چھاپے کام نہ آئے، لاہور پولیس جرائم پر قابو نہ پا سکی۔ لاہور میں 5 ماہ کے دوران کرائم کی صورتحال کیا رہی، دیکھتے ہیں شیراز نثار کی یہ رپورٹ۔ جگہ جگہ ناکے، لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے خوف کے باوجود پنجاب میں 5 ماہ کے دوران کرائم کا گراف نیچے نہ آ سکا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر بھی مختلف اضلاع اور خصوصاً لاہور میں کرائم بڑھنے پر افسران سے نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ انہیں ہر حال میں کرائم کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 5 ماہ کے دوران سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,411 ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہوئیں۔ صرف لاہور میں 5 ماہ کے دوران ڈاکوؤں نے 17 افراد کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا۔ مجموعی طور پر لاہور میں 173 افراد
को कत्ल कर दिया गया, जबकि पंजाब में 1600 अफराद कत्ल हुए और 2100 अफराद को कातलाना हमलों में जख्मी कर दिया गया। दीगर संगीन वारदातों का ग्राफ भी ऊपर ही गया है। पुलिस ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए जदीद साइंसी अंदाज अपनाया है। हफ्तावार मैपिंग शुरू कर दी गई है, जिससे ये मालूम हो सकेगा कि किस इलाके में कौन सा क्राइम ज्यादा हुआ है। पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। सीसीपी लाहौर जुल्फकार हमीद ने बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल के जरिए साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। इस हवाले से पुलिस का ये भी कहना है कि 5 माह के दौरान डाकू और चोरों के 300 के करीब गैंग्स गिरफ्तार किए गए, जबकि सैकड़ों कत्ल में मुलव्विस दर्जनों मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस को कायम हुए 48 साल गुजर चुके हैं। तमाम पुलिस अफसरान इस बात पर मुत्तफिक हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शहरियों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाकर तफ्तीशी निज़ाम को साइंटिफिक तरीके से राइज किया जाए तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। वेलकम बैक। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में खबर यह है कि मंडी बहाउद्दीन बाजार मार्केट में हुकूमती एसओपीज की खिलाफ वर्जियों इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास जुल्करनैन अवान ने दर्जनों दुकानें सील कर दी, मुतअद्दिद को जुर्माने भी कर दिए। देखते हैं मंडी बहाउद्दीन से मुदस्सर अवान की ये रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट और दुकानों को बंद करवाने के साथ भारी जुर्माने भी आयद करना शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर महताब वसीम अजहर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास जुल्करनैन अवान ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन किया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने और दुकानें सील करने के अलावा मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। कार्रवाई सदर बाजार, लंडा बाजार और मुख्तलिफ मार्केट में की गई। आज हमने गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक बाज़ारों में हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया पुलिस के साथ मिलके, और जहाँ जहाँ पे कोविड-19 के एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही थी वहाँ पे एफआईआरें भी दी हैं, हमने दुकानें भी सील की हैं और जुर्माने भी किए हैं, और ट्रेडर्स के साथ मीटिंग भी की है ताकि उन एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाएगा, और हम ये रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करेंगे इंशाअल्लाह। असिस्टेंट कमिश्नर का यह भी कहना था कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दुकानदार और कस्टमर समाजी फासले के साथ साथ मास्क को भी हर सूरत यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अवान, टीवी टुडे न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। शहदाद कोट की तहसील खबूस सईद खान के इलाका मकीनों ने पुलिस चौकी अलियास हमर खत्म करके खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में पुलिस चौकी कायम होने से जुराम में नुमाया कमी हुई है। जिला कंबर शहदाद कोट के तहसील खबूस सईद खान के इलाके के रहायशी फरियाम मक्सी, वजीर अली चांडियो, सिकंदर खोसो, मौला बख्श बरोही और दीगर ने DIG लाड़काना से मुतालबा किया कि इलियास हमर पुलिस चौकी को बरकरार रखा जाए। रोतोडेरो आग लगाने के इल्जाम पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, 9 अफराद जख्मी हो गए। रोतोडेरो के करीब थाना वारिसडनो माची की हदूद निवाही गांव में अचानक घरों में आग लग गई। आग लगने से घरों में पड़ा सामान और अनाज जलकर राख हो गया। जिन्हें जो बरादरी के 2 ग्रुपों में एक दूसरे को आग लगाने के इल्जाम में झगड़ा हो गया। झगड़े में 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
लाड़काना में 36 डॉक्टर्स और 31 पैरामेडिक्स अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर्स ने हुकूमत सिंध से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती सामान फराहम करने की अपील की है। महकमा सेहत लाड़काना के मुताबिक चांद का अस्पताल के चारों अस्पतालों में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले 36 डॉक्टर्स और 31 पैरामेडिक्स अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पत्तोकी में मोटरसाइकिल और वैन में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मोटरवे बाईपास पर हादसे में मोटरसाइकिल सवार की बीवी और बच्ची जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने शहर के मुख्तलिफ मकामात और इदारों का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और सरकारी अमूर की अंजामदही का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने ऑफिसर्स क्लब, चौक, चोड़हट्टा, मॉडल टाउन, रेलवे रोड और दीगर मकामात का मुआयना किया और सफाई, सीवरेज और दीगर मसाइल का भी जायजा लिया। कोटली आजाद कश्मीर में फ्लोर मिल्स के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। मेन रोड को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मिल से गलाजत और बदबूदार पानी सरेआम गांव की तरफ छोड़ दिया जाता है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। कोटली आजाद कश्मीर की तहसील में अवाम इलाका फ्लोर मिल्स के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और रोड को बंद करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। चकवाल कल्लर का हार मोटरवे पर 2 हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पहले हादसे में सीमेंट का ट्रेलर साल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने से उलट गया, जिससे ड्राइवर मुजफ्फर खान जाँ बहक हो गया। दूसरे हादसा में एक मज़दा मिनी ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उलट गया, जिससे 2 अफराद हसन और अब्दुल्ला जख्मी हो गए। कराची में तैयारा हादसा के अमला में शामिल फ्लाइट इरफान रफीक घरलों की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका में अदा करके सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची तैयारा हादसा में जाँ बहक होने वाले फ्लाइट स्टूडेंट इरफान रफीक की मैयत घर पहुंचते ही रकत अमेज मनाजिर देखने में आए। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। खंबर में महकमा खुराक ने एक कार्रवाई में भारी मिकदार में गंदम कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खंबर में महकमा खुराक ने इत्तलात पर ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में गंदम की दर्जनों बोरियां कब्जे में ले ली गई। गंदम कराची स्मगल की जा रही थी। गंदम को विगन फूड सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सियाफाम शहरी की हलाकत पर अमरीका भर में मुजाहिरे जारी हैं। हर तरफ तमाम पुलिस एहलकार के खिलाफ नई दफात आयद कर दी गई। मुलव्वस एहलकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ हंगामा बरपा है। घुटने से गर्दन दबाने वाले एहलकार के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सियाफाम शहरी की हलाकत पर अपने बयानात में अब यू टर्न लेते हुए कहा कि साथ जो हुआ वो एक खौफनाक वाक़या था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि इस वक्त अमन व अमान की जरूरत है। खराब लोगों का ग्रुप फ्लॉयड की मौत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने जॉर्ज के शहर के मेयर को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा जो लिबरल मेयर्स कोरोना वायरस पर लोगों को घरों में रख सकते हैं वो लूट मार पर कमजोर हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहिदा कर लिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि नरेंद्र मोदी और इनके ऑस्ट्रेलवी हममंसब स्कॉट मॉरिसन ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहिदा कर लिया। बाहमी लॉजिस्टिक्स बोर्ड का यह मुआहिदा वर्चुअल समिट में तय पाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को कोरोना बहरान के दौरान आज़ादी इजहार को दबाने का मुजरिम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने चीन, भारत, बांग्लादेश और दीगर एशियाई मुल्कों से कहा कि वो कोरोना बहरान का बहाना बनाकर आज़ादी इजहार को दबाने और सेंसरशिप की गिरफ्त मजबूत तर करने से गुरेज करे। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली खास न करने के लिए बेताब हूं। कोहली की इज्जत करता हूं लेकिन इनसे खौफजदा नहीं।
قومی فاسٹ بالر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہمیشہ بہت خاص نوعیت کا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ ان میچز سے کھلاڑی ہیرو یا ویلن بن سکتے ہیں. جب بھی موقع ملا بھارت کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار رہوں گا. قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اماد وسیم کا کہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ قومی کرکٹر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اماد وسیم کا کہنا ہے کہ وہ دیگر ساتھیوں کی طرح دوبارہ فیلڈ پر جانے کے لیے بےتاب ہیں. دوبارہ سے کرکٹ شروع ہونا کرکٹرز کے لیے انتہائی ضروری ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے طلبی کا نوٹس سابق پاکستانی فاسٹ بالر شعیب اختر کو موصول ہو گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر کی طرف سے بھیجا جانے والا نوٹس شعیب اختر کو موصول ہو گیا، جس کے بعد سابق فاسٹ بالر نے اپنے وکیل ابو ذر سلمان خان نیازی سے مشاورت شروع کر دی. مشاورت کے بعد FIA کے نوٹس کا جواب دیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب